بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں آپ بزرگوں کا احترام کرتی ہوں، ایسا لاڈ میں بھی کر سکتی ہوں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری انا کو بھی ٹھیس پہنچی تھی۔ جنرل نے کہا، ہم تمہاری انا کو بھی سمجھتے ہیں اور تمہاری وفاداری کو بھی، لیکن آپ برین ماسٹر اور چاروں بلیک سیکرٹس کی دھاندلی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں نادان بچہ نہیں ہوں، تمہارے یا کسی اور کے سمجھانے سے کسی کو گمراہ یا مجرم نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنے طور پر برین ماسٹر اور چاروں بلیک سیکرٹس کو مختلف پہلوؤں سے آزمایا تھا۔ جب وہ ضدی، خود سر اور نااہل ثابت ہوئے تو میں نے ان کے تمام اختیارات چھین لیے۔ ٹرانسفارمر مشین فوج کی کسٹڈی میں ہے اور وہ پانچوں بھی فوجی ہیڈ کوارٹر کی کال کوٹریوں میں قید کر دیے گئے ہیں۔ مرینا نے خوش ہو کر کہا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میرے ملک کو شیطانوں سے نجات مل گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوں جنرل، بے شک آپ ذہین اور معاملہ فہم ہیں، آپ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ نے مجھے بہت بڑی الجھن سے نجات دلائی ہے۔ تمہاری الجھن کیا تھی؟ یہی کہ اگر میں آپ لوگوں کی نظروں میں زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی، میرے زیادہ حمایتی ہوتے، تو برین ماسٹر اور چاروں بلیک سیکرٹس دشمنوں کی جھولی میں چلے جاتے۔ درپردہ یہودی تنظیم کا ساتھ دینے یا بہت زیادہ اہمیت حاصل کرنے کے لیے فرحاد علی تیمور کی ٹیم میں شامل ہو جاتے۔ جنرل نے کہا، تمہاری یہ الجھن دور ہو چکی ہے، اب اپنے خیال خوانی کرنے والوں کا حساب دو۔ برین ماسٹر کی ضلالت سے ٹیٹو سینٹینا مر چکا ہے، تمہارے پاس اب 3 ٹیلیپیتھی جاننے والے ہوں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں خوشخبری سناتی ہوں، وارنر ہیگ، جے مورگن، کینی پال، مکی میتھیو، شلپا اور مارٹن رسل مجھے واپس مل رہے ہیں۔ تعجب ہے اتنی شاندار کامیابیاں کیسے حاصل کر رہی ہو؟ اپنی حکمت عملی سے۔ میں نے پارس سے دوستی کی، پھر سونیا اور فرحاد میرے دوست بن گئے، ہمارے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیسا سمجھوتا؟ یہ کہ میں اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو اپنے ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گی اور ان سے دوسرے ملکوں اور قوموں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ جنرل نے کہا، مرینا، تم سیاست کے میدان کی کھلاڑی نہیں ہو۔ یہ بات موٹی سی عقل میں بھی آ سکتی ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں مسلم ممالک کو دہشت زدہ کرنے اور اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے اسرائیل کو طاقتور نہ بناتے رہے تو یہ اسلامی ممالک تیل کی دولت اور آپس کے اتحاد سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے۔ اب فرحاد کی چال بازی دیکھو، وہ تم سے کہے گا کہ اسرائیل کی پشت پناہی نہ کی جائے۔ مرینا نے پوچھا، اس میں غلط کیا ہے؟ آپ اسرائیل کو اتنا سر پر کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھر اسرائیل کے تمام گولڈن برینز کو ختم کرنے والی دشمنی بھی کی تھی۔ یہ کیا پالیسی ہے کہ مسلمانوں سے بھی دوستی اور درپردہ دشمنی، اسرائیل سے بھی دوستی اور درپردہ دشمنی ہے؟ اسے سیاست کہتے ہیں۔ سونیا اور فرحاد تمام گولڈن برینز کا خاتمہ نہ کرتے تو ہم کر دیتے، کیونکہ گولڈن برینز کی پالیسیاں اسرائیل کو ہمارے مقابلے میں سپر پاور بنا رہی تھیں۔ ہم اسرائیل کو سگی اولاد کی طرح سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اسے سپر طاقت بن کر اپنے مقابلے پر نہیں آنے دیں گے۔ آپ دوسرے ممالک کو ترقی کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ترقی کرنے دیتے ہیں، پختہ سڑکیں، آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں بنانے، اپنے ملکوں میں کاریں، ٹی وی، وی سی آر، کمپیوٹرز اور جدید ٹیکنالوجی کا تمام سامان خریدنے اور بنانے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارے زیر سایہ رہ کر اسلامی ممالک نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے ان ممالک میں صرف تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی، آج پاپ میوزک ہر گھر اور ہر گلی میں سنائی دیتا ہے۔ یہ تو ترقی نہ ہوئی، یہ دوسری قوموں کو عیش و عشرت میں ڈبونے کی سازش ہے۔ فرحاد ایسی ہی باتوں کے خلاف ہے۔ تم فرحاد کی زبان سے نہ بولو، امریکی قوم کی امریکی بیٹی بن کر سوچو اور سمجھو۔ تمہیں صرف اپنے ملک اور اپنی قوم کو دوسروں سے برتر رکھنا ہے، اور اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کمتر بنا کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے ملک کی بھلائی کرتے ہوئے اور برتری قائم رکھتے ہوئے دوسرے ملکوں سے بھی انصاف کر سکتی ہوں۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ برتری کا مطلب ہے دوسروں سے افضل اور بلند ہونا، اور افضل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دوسرا کم تر اور کمزور ہو۔ حکومتیں اسی اصول پر قائم رہتی ہیں کہ حکمران شاذور رہے اور باقی کمزور اور مجبور رہا کریں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، مرینا، ہم تمہارے بزرگ ہیں، سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں، تم سیاسی پیچیدگیوں میں نہ الجھو۔ ہم ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں استعمال کرنے دو۔ وہ بولی، میرے بزرگ، آپ لوگ میرے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو اسرائیل بھیجنا چاہتے تھے۔ ان دنوں میرا فرحاد سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسرائیل میں میرے آدمی فرحاد کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میں ان کی حرام موت نہیں چاہتی تھی، پھر اسرائیل کو سر پر چڑھانے والی بات تھی، اس لیے میں نے اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں آئندہ بھی جائز اور ناجائز باتوں کو سمجھنے کے بعد ہی اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ دوں گی۔
जनरल ने कहा। बात समझ में आ गई, तुम अपना एक अलग रास्ता इख्तियार कर रही हो। वो बोली, रास्ता अलग ज़रूर है, लेकिन ये मुझे मेरे मुल्क के मुफादात की तरफ ले जाता है। मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। हर मुहिब वतन को ये हक़ पहुँचता है कि वो अपने तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत करे। ठीक है, तुम अपने मामलात में आज़ाद हो, लेकिन वक्तन फ़वक्तन अपने काम की रिपोर्ट देती रहो। हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हारे नुमाइंदे के ज़रिए कॉल करेंगे। वैसे तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम 24 घंटों में 2 बार हमसे राबता रखो। हम में से किसी के भी दिमाग में कोड वर्ड्स अदा करके आ सकती हो। मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक राबता रखूँगी। इजाज़त दीजिए, रात को किसी वक्त राबता होगा। ओके, गुड बाय। फ़ौजी अफसर ने सांस रोक ली, फिर सांस लेते हुए बोला, वो जा चुकी है। एक हाकिम ने जनरल से कहा, आपने ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स जैसे बेलगाम घोड़ों को काबू में कर लिया। इस लड़की को लगाम देना कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। जनरल ने कहा, यह बेशक व शुबा अपने मुल्क की वफादार है। पहले इसे फरहाद के तिलिस्म से निकालना होगा, फिर ये खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। मेरा ख्याल है आज की ये मीटिंग बर्खास्त की जाए। वो सब अपनी अपनी जगह से उठने लगे। अचानक फ़ौजी अफसर ने सांस रोककर कहा, शायद मरीना फिर मेरे दिमाग में आना चाहती है। जनरल ने कहा, आने दो। चंद लम्हों के बाद अफसर की ज़ुबान से एक ब्लैक सीक्रेट ने कहा, मैं आप लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, सिर्फ एक इल्तजा करना चाहता हूँ। आपने हमें काल कोठड़ी में पहुँचा दिया है। हमारे तमाम इख्तियारात छीन लिए गए हैं। हम निहायत आजिज़ी और इनकसारी से दरख्वास्त करते हैं कि टेलीपैथी का इल्म हमारे दिमाग से ना मिटाएं। हमें कैदी रहने दें, लेकिन हमारे इल्म को मुल्क और कौम के लिए इस्तेमाल करें। दूसरे ब्लैक सीक्रेट ने कहा, हम कैद में मजबूर और बेबस रहेंगे। आप लोगों के लिए कभी चैलेंज बनना चाहें तब भी नहीं बन सकेंगे। यहाँ शराफत से बैठकर आपके काम आते रहेंगे। ब्रेन मास्टर ने कहा, सीधी सी बात है, टेलीपैथी का इल्म हमारे दिमाग से मिट जाएगा तो हम आम इंसान बनकर जिंदा नहीं रहेंगे। हमें उम्र कैद की सज़ा दो, मगर हमें इस इल्म से महरूम ना करो। जंजीरें पहनाकर हमारी ख्याल ख्वानी से फ़ायदा उठाते रहो। जनरल ने कहा, बड़ी माकूल बातें कर रहे हो। तुम पांचों को काल कोठड़ी की सलाखों में कैद करके तुमसे काम लिया जा सकता है। आप हजरात इस सिलसिले में क्या मशवरा देंगे? आला हुकाम और दूसरे फ़ौजी अफसरान ने तायद करते हुए कहा, इन पांचों का गुरूर टूट चुका है। अब ये कैद में रहकर हमारे इशारों पर चलेंगे तो शायद कोई कारनामा अंजाम दे सकें। जनरल ने उन्हें यकीन दिलाया कि टेलीपैथी के इल्म से महरूम नहीं किया जाएगा। वो जनरल की मर्ज़ी के मुताबिक ख्याल ख्वानी करेंगे, लेकिन काल कोठड़ी में रहा करेंगे। अली तैमूर बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ को देख रहा था। रसवंती सांस रोके योगा के एक आसन से दूसरे आसन में जा रही थी। अली ने कहा, मामा, मोहतरम तबरेज़ी साहब फरमा रहे थे कि आपकी जहानत में हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है। आप इतने तवील अरसे तक गोशा नशीन रहकर दिन रात मेहनत करती रही हैं। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटे, जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब मुझ पर ख़ास तवज्जो देते रहे। मेरा रूहानी तौर पर भी इलाज करते रहे। मैं रोज़ सुबह 2 मील की दौड़ लगाती हूँ, वर्जिश करती हूँ। जिस्मानी और दिमागी कोई कमज़ोरी मुझ में नहीं है। मामा, सच तो यह है कि आप भी सोनिया मामा की तरह 16-17 बरस की दिखाई दे रही हैं। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने मामा से भी ऐसी ही मेहनत कराई थी जैसी आप कर रही हैं। बेटे, इंसान के साथ असल खेल सांसों का है। योगा में जितनी महारत हासिल होगी, इंसान उतना ही जवान और तरोताज़ा लगेगा। मैं आईना देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमें जवान, सेहतमंद और खिले हुए फूल की तरह शगुफ्ता रहने के लिए तरह तरह के उलूम दिए, मगर हम उन उलूम पर अमल नहीं करते हैं और वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन आप तो अम्मा जान बिल्कुल नहीं लगती हैं। अब मैं अम्मा जान किसे कहूँगा? वो हंसती हुई बोली, मैं फिर से पैदा होकर नन्ही मुन्नी सी बच्ची बन जाऊँ तब भी तुम्हारी माँ रहूँगी। मेरे खून का ग्रुप O नेगेटिव है। मैं बूढ़ी रहूं या बच्ची रहूं, मेरा खून तो वही रहेगा जिससे तुम 9 माह तक परवरिश पाते रहे। वाह मामा, क्या लाजवाब कर देने वाली बात कह दी है। दिल खुश कर दिया है। उसी वक्त सलमान ने अली के दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए और कहा, बेटे, मैं शल्पा की निगरानी के लिए गया था। वहाँ मैंने एक नए टेलीपैथी जानने वाले को देखा। वो शल्पा को अमेरिका ले जाना चाहता है। इससे पहले तुम चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में आ जाओ। मैं उसे ख्याल ख्वानी के जरिए फांसने की कोशिश करूंगा। अगर नाकामी हुई तो तुम उसे जख्मी करोगे ताकि मुझे उसके दिमाग में जगह मिल सके। शल्पा तो लंदन में है और पारस भी उसी शहर में है। मैं आपके हुक्म पर आ तो जाऊंगा, लेकिन आप पारस से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो मरीना के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। फ्रांसीसी पुलिस के हेलीपोर्ट पर पहुंचो, वहां तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार है। अली ने रसवंती से कहा, मामा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शायद कल शाम तक वापसी होगी। माँ ने उसे गले लगाकर प्यार किया। उसने कहा,
ثانی آئے تو اسے بتا دیں کہ میں اچانک ہی ایک بہت ضروری کام سے گیا ہوں۔ تم یہ نہ بھی کہتے تو میں ثانی سے یہی کہتی، مگر یہ بات یاد رکھنا وہ اداس ہو جائے گی۔ میں کیا کروں، وہ لیبارٹری میں مصروف ہے اور ادارے کے اصولوں کے مطابق میں اسے مصروفیات کے دوران نہیں مل سکتا۔ اوکے ماما، خدا حافظ۔ وہ ماں سے رخصت ہو کر ادارے کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا۔ اس سواری کے ذریعے پیرس کے ایک پولیس ہیلی پورٹ پر پہنچا، پھر چارٹرڈ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر لنڈن کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں سے لنڈن کا ایک فلائنگ کلب 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ سلمان نے خیال خوانی کے ذریعے وہاں ایک کار کا انتظام کر دیا تھا۔ جب علی 1.5 گھنٹے کے بعد کار میں بیٹھ کر شلپا کے بنگلے کی طرف روانہ ہوا تو سلمان نے کہا، اب میں نئے خیال خوانی کرنے والے کو ٹریپ کرنے جا رہا ہوں۔ تم بنگلے کے قریب پہنچ کر میرے سگنل کا انتظار کرو۔ شام کا وقت تھا۔ شلپا اپنے اور ایون راسکا کے لیے کافی تیار کر رہی تھی۔ سلمان جو کا لہجہ اختیار کر کے شلپا کے دماغ میں آیا، پھر شلپا ہی کی سوچ میں سوال کیا، میرے پاس اعصابی کمزوری کی کوئی دوا ہے؟ وہ سوچنے لگی، میں نے دشمن ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا دماغ کمزور بنانے کے لیے یہ دوا رکھی ہے، لیکن میرا یہ اجنبی دوست میری بہتری کا سامان کر رہا ہے، مجھے جو کے تنویمی عمل سے نجات دلوانے والا ہے، میں اسے وہ دوا نہیں کھلاؤں گی۔ سلمان نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق کافی میں دوا ملا کر دوسرے کمرے میں آئی۔ کافی کی ٹرے سے ایک پیالی اٹھا کر ایون راسکا کو دیتے ہوئے بولی، ذرا پی کر دیکھو، چینی ٹھیک ہے؟ وہ ٹرے کو میز پر رکھ کر اپنی پیالی لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایون راسکا نے ایک گھونٹ پینا چاہا، پتہ نہیں کیسے ٹھسکا لگ گیا، بے اختیار کھانسی آئی اور وہ پہلا گھونٹ منہ سے باہر آ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ٹیشو پیپر سے منہ پونچھتے ہوئے بولا، سوری، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں کافی نہیں پیوں گا۔ سلمان نے دیکھا کہ کام نہیں بن رہا ہے تو وہ شلپا کو چھوڑ کر فوراً علی کے پاس آیا۔ وہ بنگلے کے قریب پہنچ کر انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹے فوراً اندر جاؤ۔ یہ کہتے ہی شلپا کے پاس آیا، مگر چند سیکنڈ میں ہی معاملہ بگڑ چکا تھا۔ شلپا اس کی گرفت سے دماغی طور پر آزاد ہوتے ہی راسکا سے بولی، تمہارے لیے خطرہ ہے، میں کافی میں دوا نہیں ملانا چاہتی تھی، مگر جو نے میرے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا، اچھا ہوا تم نے یہ کافی نہیں پی۔ یہ سنتے ہی وہ جوتے پہننے لگا۔ اس سے بولا، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کروں گا، تمہاری روانگی کے وقت ایئرپورٹ پر موجود رہوں گا، تم خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ وہ پھرتی سے جوتے پہن کر اٹھا، تیزی سے چلتا ہوا دروازے پر آیا۔ اسی لمحے میں علی کا گھونسا اس کے منہ پر پڑا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا، ایک کرسی پر گرتے ہوئے فرش پر پہنچ گیا۔ وہ اچھا خاصا صحت مند تھا، بہترین فائٹر بھی تھا، مگر ایسا فولادی ہاتھ پہلی بار کھایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے، پھر بھی وہ سنبھل کر مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ علی نے کہا، بڑے بے شرم ہو، ایک ہاتھ کھانے کے بعد بھی اپنے انجام سے انکار کر رہے ہو۔ تم کون ہو؟ میرے کوئی بھی ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ تم شلپا کو ٹریپ کرنے آئے تھے، میں تمہیں ٹریپ کرنے آیا ہوں۔ سیدھی طرح دماغ میں آنے دو، ورنہ اتنے خوبصورت کثرتی جسم کی توڑ پھوڑ ہوگی تو کیا اچھا لگے گا؟ اس نے اچانک علی پر چھلانگ لگائی۔ علی نے اسے دونوں ہاتھوں پر روک کر پوچھا، اس طرح کیوں چھل رہے ہو؟ اس نے دھکا دیا۔ راسکا پیچھے دیوار سے آ کر ٹکرا گیا، پھر پلٹ کر بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف بھاگنے لگا۔ پچھلے دروازے سے نکل کر باؤنڈری وال پھلانگ کر گلی میں دوڑنے لگا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ علی بھی اس کے ساتھ دوڑتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، ہم دو بھائی ہیں، بچپن سے دوڑتے آ رہے ہیں، اولمپکس کی دوڑ میں اول آنے والے بھی ہم سے آگے نہیں نکل سکتے، تم بھاگنے کی حسرت پوری کر لو، تھک جاؤ تو بتا دینا۔ وہ رک گیا، ہانپتے ہوئے بولا، فار گاڈ سیک میرا پیچھا چھوڑ دو۔ علی نے سلمان سے کہا، انکل یہ ہانپ رہا ہے، سانس نہیں روک سکے گا۔ سلمان علی کے دماغ سے نکل کر اس کے اندر پہنچا۔ اس نے محسوس کرتے ہوئے سانس روکنے کی ناکام کوشش کی، پھر گھبرا کر بولا، چلے جاؤ، میرے دماغ سے چلے جاؤ۔ سلمان نے ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ گلی سے گزرنے والے دو آدمی رک گئے۔ علی نے کہا، یہ میرا دوست ہے، اسے اکثر ایسا دورہ پڑتا ہے۔ اس نے راسکا کو سہارا دے کر اٹھایا، پھر اسے شلپا کے بنگلے کی طرف لے جانے لگا۔ سلمان نے راسکا کی زبان سے کہا، اب میں اسے دوڑاتا ہوا لے جاؤں گا، ابھی اس کا دماغ پوری طرح کمزور نہیں ہوا ہے۔ راسکا دوڑنے لگا، علی اطمینان سے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ بنگلے کے اندر پہنچ کر سلمان نے پھر اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخیں مار کر تڑپنے لگا۔ شلپا اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جو میں سمجھ گئی ہوں، تم اس کے ساتھ مجھے جانے نہیں دو گی، ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، تم اسے چھوڑ دو۔ سلمان نے راسکا کی زبان سے پوچھا، کیا تم اسے بہت چاہتی ہو؟ ہاں، میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔
तो फिर इस पर भी तनवीमी अमल होने दो, इसके बाद हम इसे तुम्हारे लिए आज़ाद छोड़ देंगे जैसे तुम्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। अली ने बंगले में आकर कहा, अंकल मुझे पता नहीं था ये इतनी जल्दी काबू में आ जाएगा। बहरहाल मेरा काम हो चुका है, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? सलमान ने कहा, तुम फ्लाइंग क्लब चलो, हेलीकॉप्टर अभी वापस नहीं गया है, मैं पायलट को तुम्हारा इंतज़ार करने को कहता हूँ। उसने पायलट के पास जाकर कहा, अली आ रहा है, उसे वापस ले जाओ। फिर वो रास्का के दिमाग में आ गया। रास्का बिल्कुल ढीला पड़ गया था, मगर किसी वक्त भी उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो सकती थी। सलमान ने उसे उठने पर मजबूर किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर मेज़ के पास आया, कुर्सी पर बैठा, फिर कॉफ़ी की वही प्याली उठाकर पीने लगा। शिल्पा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? वो आगे बढ़कर उसके हाथ से प्याली लेना चाहती थी। सलमान ने उसके अंदर पहुंचकर जलजला पैदा किया। वो चीखते हुए फर्श पर गिरकर तड़पने लगी, फिर दूसरे जलजले में बेहोश हो गई। वो उसकी तरफ से मुतमईन होकर रास्का के पास आया और उसके चोर ख्यालात पड़ने लगा। वो थोड़ी देर के बाद पारस के पास आया। पारस मरीना के साथ एक तैयारे में सफ़र कर रहा था। उसने कोड वर्ड सुनकर कहा, अंकल फरमाइए, मरीना से कहो तुम्हारे दिमाग में आए। उसने मरीना से कहा, अंकल सलमान मेरे पास हैं, वो तुमसे बातें करेंगे। वो पारस के दिमाग में आकर बोली, हेलो अंकल। बेटी क्या तुमने टेलीपैथी जानने वाले एवन रास्का के बारे में सुना है? नहीं, ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। ब्लैक सीक्रेट ने तुम्हें तलाश करने के लिए रास्का को भेजा था। उसे तुम ना मिली, शल्पा मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो शल्पा को ट्रैप करता मैंने उसे आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कर दिया है। अंकल इसका मतलब है कि एक और ख्याल ख्वानी करने वाला हाथ आ गया है। हाँ, और ये तोहफा मेरी बेटी के लिए है। मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें इसके पास पहुंचाता हूँ, फिर तुम जो बेहतर समझो उसके साथ सलूक करो। सलमान ने उसे एवन रास्का के दिमाग में पहुंचा दिया। वार्नर हेग जजीरा पोटोया में महफूज था, बड़े आराम से किसी अंदेशे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा था। तमाम टेलीपैथी जानने वालों में वही एक खुश नसीब था जो बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहा था। ऐसा इसलिए था कि वो बेखौफ ख़तर ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर अमल कर रहा था। सबसे पहली बात यह कि वो मगरूर और बददिमाग नहीं था, दूसरों को छोटा बनाकर खुद बड़ा नहीं बनना चाहता था। उसे सारी दुनिया पर हुकूमत करने का शौक़ नहीं था। अगर वो चाहता तो कम अज़ कम उस जजीरे के मालिक यार बख्तियार को टेलीपैथी की चक्की में डालकर वहाँ का मालिक और हुक्मरान बन सकता था। अगर वो जजीरे का हुक्मरान बन जाता तो बड़े ममालिक के सरबराहों की नज़रों में आ जाता। अमेरिका और रूस ख़ास तौर पर वहाँ के तमाम जजीरों को अपनी नज़रों में रखते हैं। इन छोटे छोटे जजीरों के अंदर बड़े बड़े ख़तरात पलते रहते हैं। हुकूमतों के बागी यहाँ पनाह लेते हैं। दुनिया के बदनाम तरीन जुराइम पेशा अफराद भी यहीं पर अपने खुफिया अड्डे बनाते हैं और यहीं खुफिया तौर पर ख़तरनाक साइंसी तजर्बात किए जाते हैं। इसलिए बड़े ममालिक दुनिया के तमाम जजीरों पर कड़ी नज़र रखते हैं। जजीरा पोटोया भी अमेरिका, रूस और ख़ास तौर पर इसराइल की नज़रों में था, क्योंकि इसराइल से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर था। ये वार्नर हेग की जहानत थी कि उसने खुद को किसी तरह भी जाहिर नहीं किया था। यहूदियों को टेलीपैथी की ज़रा सी भिनक मिल जाती तो वो जजीरे का फ़ौरन ही मुहासरा कर लेते। फिर वार्नर हेग का भी वही अंजाम होता जो जॉन गाउवी, जे मॉर्गन और पापा डोक का हो रहा था। जॉन गाउवी और वार्नर हेग आपस में अच्छे दोस्त थे। अमेरिका से फ़रार होकर इंग्लैंड आए थे, क्योंकि सोनिया और अली तैमूर उन दोनों टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप करते फिर रहे थे और वहाँ के हुक्काम और फ़ौज के आला अफसरान उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे थे। लेकिन भागने वालों के लिए हर जगह नाकामी लिखी होती है। पापा डोक के आदमी उन दोनों के अतराफ जाल बिछा रहे थे। हेलीकॉप्टर में सफ़र करने के दौरान पापा डोक ने कई बार वार्नर हेग के दिमाग में आना चाहा, लेकिन वो अपनी जहानत से बचता हुआ जजीरा पोटोया में पहुंच गया था। उसके बरक्स जॉन गाउवी पापा डोक की गिरफ्त में आ गया था और आखिर एक दिन वो ब्रेन ऑपरेशन के दौरान मारा गया था। वार्नर हेग इस हकीकत से बेखबर था कि हमने तनवीमी अमल के ज़रिए उसे अपना मामूल बना रखा है। हमने कभी उसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुखातिब नहीं किया, कभी उस पर बरतरी जताकर उसे एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं किया। वो ख़ुद को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार समझकर बड़ी महफूज ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने जजीरे में पहुंचकर पहले ऐसा शख्स तलाश किया जो उसके काम आ सकता था। तलाश करने में कई घंटे या कई दिन लग सकते थे। वहाँ के हुक्मरान यार बख्तियार के सिपाही ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जो हेलीकॉप्टर से जजीरे में आया था। जिस हेलीकॉप्टर में वार्नर हेग आया था वो सिर्फ 1 मिनट के लिए जजीरे में उतरा था, फिर परवाज़ कर गया था। वार्नर हेग ने एक सिपाही के ज़रिए आला अफसर के दिमाग में जगह बनाई, फिर उस अफसर के ज़रिए वहाँ के हुक्मरान यार बख्तियार के दिमाग में पहुँच गया।
उन्हें मुखातिब नहीं किया, सिर्फ उनके अंदर ये ख्याल मुस्तहकम किया कि इसराइल और लेबनान के छापा मार अक्सर स्पीड बोट और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए आते हैं, उनके दरमियान झड़पें होती हैं, फिर वो चले जाते हैं। यार बख्तियार ने अफसर से कहा, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर शुमाली साहिल पर आया था, इसका मतलब है लेबनान से कुछ लोग आए होंगे। 1 मिनट के अंदर ही वो हेलीकॉप्टर इसराइल के मगरिब में पहाड़ी जजीरे की तरफ चला गया। उन दोनों मुल्कों के फौजी और छापा मार हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं, हम उन्हें अपना दुश्मन भी नहीं बना सकते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। आला अफसर ने कहा, हमारी यही पॉलिसी मुनासिब है, हम दोनों मुल्कों के फौजियों और बागियों पर एतराज़ नहीं करते हैं, वो साहिली इलाकों में लड़ते हैं और चले जाते हैं। यार बख्तियार ने कहा, ठीक है, किसी को तलाश करना फजूल है, जो लोग हेलीकॉप्टर में आए होंगे वो खुद ही वापस चले जाएंगे। वार्नर हेग ने दोनों दिमागों में यह बात नक्श कर दी कि उस आने वाले अजनबी को तलाश ना किया जाए। इसके बाद भी अगर कोई ख़तरा होता तो वो यार बख्तियार के दिमाग पर कब्ज़ा जमाकर वहाँ का हाकिम बन जाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होकर दुश्मनों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। गुमनाम रहने ही में उसकी खैरियत थी। वो जजीरे की आबादी में घूमता रहा, दुकानों, होटलों और बाज़ारों में काम के लोगों को ताड़ता रहा और उनके ख्यालात पढ़ता रहा। आखिर एक बूढ़ा मुसलमान मिल गया। वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। वो बूढ़ा लेबनान से आया था और अपने जवान बेटे का इंतज़ार कर रहा था। बेटा लेबनान की खाना जंगी में उलझा हुआ था। उसने बाप से वादा किया था कि जल्द ही उन झगड़ों से निजात पाकर जजीरे में आएगा। वार्नर ने बूढ़े से कहा, बाबा, मैं ईसाई हूँ लेकिन खाना जंगी में मुसलमानों की हिमायत करता हूँ। यहूदियों ने मेरे बुजुर्गों को मार डाला, मेरा घर तबाह कर दिया, मैं इस जजीरे में पनाह लेने आया हूँ। वो बूढ़ा रहम दिल था। अगर रहम दिल ना होता तो वार्नर ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके दिल में जगह बना लेता। उसने अपने घर में वार्नर को पनाह दी, मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि उसका भतीजा लेबनान से आया है और बेटा भी आने वाला है। वार्नर को समझाया कि वो कुछ अरसे तक वहाँ मुसलमान बनकर रहे, फिर कहीं जाकर अपना ठिकाना बना ले। वार्नर का भी ख्याल था कि जल्द ही वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए देख रहा था कि किस तरह उसका साथी जॉन गावी यहूदियों की कैद में रहकर मारा गया है। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी सुकून में नहीं थे। या तो दुश्मनों के हत्थे चढ़कर जिल्लत की मौत मरते थे या खतरात से दो चार होते रहते थे। वो कुछ दिनों तक एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर ऐसा हुआ कि पड़ोस के एक घर में चोरी हो गई। पड़ोसी ने वार्नर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आधी रात के बाद घर से बाहर टहल रहा था। टहलने का महज बहाना था। उसने मौका पाते ही घर में घुसकर अलमारी से $10,000 चुरा लिए थे। वार्नर ने कहा, पिछली रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए घर से बाहर खुली फजा में अच्छा लग रहा था। अपने घर के सामने टहलने वाले चोर नहीं होते। पड़ोसी की बेटी हमायला ने कहा, पापा, आप किसी पर शुबा कर सकते हैं लेकिन सबूत के बगैर उसे चोर कहकर बदनाम नहीं कर सकते। बाप ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू इस जवान की हिमायत क्यों कर रही है, इससे आंखें लड़ाती है तू। मैंने शाकिर से तेरी शादी करने के लिए 10,000 जमा किए थे। तू हमेशा शाकिर से नफरत करती रही है। मुझे शुबा है कि तूने ही अपने यार से मिलकर यह चोरी करवाई है ताकि शादी ना हो सके। उसकी एक बात दुरुस्त थी कि हमायला वार्नर को दिल से चाहने लगी थी और यह चाहत की ताली दोनों हाथों से बज रही थी। वो लड़की वार्नर के दिल में समा गई थी। पहली बार उसे देखकर सोचता रहा, ये इतनी अच्छी क्यों लगती है। अमेरिका से यहाँ तक दर्जनों लड़कियाँ उसकी ज़िंदगी में आई थीं, लेकिन हमायला की तरह दिल से नहीं लगी थीं। फिर उसने चुपके चुपके हमायला के चोर ख्यालात पढ़े तो पता चला वो सिर्फ सूरत ही से नहीं, सीरत से भी खूबसूरत है। उसे दिल से चाहने के बावजूद वो उससे दूर रहने की कोशिश करता था। सोचता था कि कोई मुनासिब मौका देखकर उस जजीरे से चला जाएगा, लेकिन जजीरे के मशरिक में इसराइल था और शुमाल में लेबनान की खाना जंगी जारी रहती थी। जुनूब और मगरिब की तरफ जाना चाहता तो तवील बहरी सफ़र का कोई जरिया नहीं था। बहरहाल उसने पड़ोसी से कहा, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन इतने महल्ले वालों के सामने अपनी बेटी को भी इस चोरी में शरीक कर रहे हो। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए कुछ तो शर्म आनी चाहिए। एक औरत ने कहा, यह तो सच है कि हमायला शाकिर से शादी नहीं करना चाहती। मैं एक औरत हूँ, उस लड़की की नज़र पड़ती हूँ, ये तुम्हें चाहती है। वार्नर वहाँ राशिद जमाल के नाम से पहचाना जाता था। एक नौजवान ने पूछा, जमाल, सच बताओ, क्या तुम हमायला से मोहब्बत नहीं करते हो? वार्नर ने हमायला को देखा। वो शर्मा रही थी। सरेआम मोहब्बत का इकरार करने का मतलब ये होता कि वो हमायला को अपने नाम कर रहा था, और जब उसे छोड़ कर जाता तो वो उसके नाम से बदनाम होती रहती। उस प्यार करने वाली का दिल टूट जाता। वो इकरार नहीं करना चाहता था, इनकार भी नहीं करना चाहता था। उसने कहा,
यहाँ किसी से मोहब्बत करने का मसला नहीं है। चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर और हमायला पर लगाया गया है। मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए, मैं असल चोर को आप तमाम लोगों के सामने ले आऊँगा। हमायला के बाप ने कहा, मैं सिर्फ 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, इसके बाद हाकिम के पास जाकर फरियाद करूँगा। वार्नर मकान के अंदर आया। उसे शुबा था कि यह शाकिर की ही हरकत हो सकती है। हमायला ने उसके मुंह पर कह दिया था कि वो मर जाएगी लेकिन उस शराबी जवारी से शादी नहीं करेगी। शाकिर ने शायद अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं की होगी और उसे वार्नर के साथ बदनाम करने के लिए चोरी की होगी। वो शाकिर के दिमाग में पहुंचा तो तस्दीक हो गई। वो मकान से बाहर आया। महल्ले के लोग वापस जा रहे थे। उसने आवाज़ दी, मेरी माँओं, बहनों और भाइयों, रुक जाओ, मैं अभी आप लोगों के सामने चोर को पेश करूंगा। तमाम मर्द, औरतें और बच्चे बूढ़े वापस आने लगे। वो बोला, आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, मैं दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर आंखें बंद करूं तो आप भी मेरी तरह सीने पर बाजू रखकर आंखें बंद कर लें और सिर्फ 2 मिनट तक खुदा को याद करते रहें। 3रा मिनट शुरू होने से पहले वो चोर यहाँ हाजिर हो जाएगा। सब ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। एक ने पूछा, आंखें बंद करने और खुदा को याद करने से चोर कैसे वापस आ जाएगा? दूसरे ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, अगर 2 मिनट तक खुदा को याद करने से चोर पकड़ा जाए तो पुलिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। वार्नर ने कहा, जब चोर ना आए तो आप मेरा मजाक उड़ाएं, बल्कि मुझे चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दें। अभी मेरी इल्तजा है, आप लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुदा पर भरोसा करें। यह कहकर उसने अपने सीने पर दोनों हाथ रख लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे देखकर हमायला ने सबसे पहले ऐसा किया, फिर दूसरे भी यही अमल करने लगे। वार्नर आंख बंद करते ही शाकिर के पास पहुंच गया था। वो एक रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वहां से उठकर घर की तरफ भागने लगा। दोस्तों ने कहा, रुक जाओ, इस तरह अचानक कहाँ भागे जा रहे हो? शाकिर, रुक जाओ। लेकिन वो किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा था। जब उसने घर पहुंचकर अलमारी से $10,000 निकाले तब वार्नर ने उसके दिमाग को ज़रा सी ढील दी। वो घबरा गया। अपने हाथों में 10,000 देखकर बुड़बुड़ाया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये रकम क्यों निकाली है मैंने? वार्नर ने उसकी सोच में कहा, जिसकी रकम है मैं उसे वापस करूँगा। वो इनकार करना चाहता था। वार्नर ने उसे वहाँ से दौड़ाया। 2 मिनट पूरे होने वाले थे। शाकिर चीखता हुआ आने लगा, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने हमायला के घर से 10,000 चुराए हैं। वो लोगों की भीड़ में से गुजरता हुआ आया। सब ने आंखें खोल दी थीं। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देख रहे थे। वो कह रहा था, हमायला ने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसे राशिद जमाल के साथ बदनाम करना चाहता था, लेकिन मुझ पर खुदा की मार पड़ रही है। जब तक मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी मैं खुदा की मार खाता रहूँगा। उसने नोटों की गड्डी हमायला के बाप के कदमों में फेंकी, फिर उछलकर ज़मीन पर गिरा और अपना सर एक पत्थर से टकराने लगा। लोग सकते के आलम में उसे लहू लहान होता देख रहे थे। वार्नर ने कहा, लोगों, इसे माफ़ कर दो वरना ये मर जाएगा, इसी तरह सर टकराता रहेगा। एक औरत ने कहा, मैंने इसे माफ़ किया। हमायला के बाप ने कहा, मैंने इसे माफ़ किया। फिर सभी उसे बुलंद आवाज़ से माफ़ करने लगे। वार्नर ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। सर टकराने का अमल रुक गया। वो एक तरफ ज़मीन पर गिर पड़ा। वार्नर ने अपने मकान में आकर दूर खड़ी हुई हमायला को देखा, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। महल्ले की औरतें और मर्द दरवाजे पर आकर दस्तक देने और कहने लगे, राशिद जमाल, तुम खुदा के एक नेक बंदे हो, हमने तुमसे गुस्ताखी की है, हमें माफ़ कर दो। वार्नर ने अंदर से कहा, खुदा सबको माफ़ करता है, जब भी कोई गलती करो तो खुदा ही से माफ़ी मांगा करो, अब जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। वो एक एक करके चले गए। आखिर में दरवाजे के पास हमायला की आवाज़ सुनाई दी, जमाल, मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो फिर सुनो और दिल से सुनो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे ही नाम से ज़िंदा रहूँगी। एक हसीन लड़की अपनी ज़ुबान से चाहत का इजहार करे तो चाहने वाले को कुल कायनात मिल जाती है। वार्नर सोच में पड़ गया। हमायला उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो उसे मोहब्बत से हासिल करना चाहता था मगर धोखा नहीं देना चाहता था, जबकि वो उसे मुसलमान समझकर धोखा खा रही थी। वो दिल पर जबर करते हुए बोला, हमायला, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम बहुत अजीम इंसान हो, ये क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तुम्हारी शरीक हयात बनने के काबिल नहीं हूँ। मैं सच कहता हूँ, तुम बहुत हसीन हो, तुम्हारे सीने में मोहब्बत भरा दिल है, तुम्हारी सूरत और सीरत का तकाजा है कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिले जो कभी तुम्हारा साथ ना छोड़े। मैं तो खाना बदोश हूँ, आज यहाँ कल ना जाने कहाँ। तुम्हारे साथ मैं भी खाना बदोश बन जाऊँगी। तुम मुझे सारी ज़िंदगी आजमा लो।
यहाँ तन्हा छोड़ कर जाओगे तो मरते दम तक तन्हा रहूंगी, कोई दूसरा शख्स मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। वो चली गई। वार्नर उलझन में पड़ गया। रात हुई तो बूढ़े से बोला, अंकल, आपने मुझे पनाह दी है, मुझे एक इस्लामी नाम देकर अपना बेटा बनाया है, आपने मुझ पर एतमाद किया है। मैं एक मुसलमान लड़की को धोखा देकर आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इससे पहले कि हमाइला का दिल टूटे, मैं उसे अपनी असलियत बता देना चाहता हूं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।